Hello friends, my name is Anup and I'm back again with the another video. Yes, and in this video we are going to start with the lesson 1 of the Marigold book for class 4. तो हम आज क्लास 4 के मैरीगोल्ड बुक के लेसन 1 पे बात करने वाले हैं, ढेर सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, टू लर्न समथिंग, टू लर्न मेनी थिंग्स. यस, सो द लेसन नंबर 1 इज दिस: वेक अप. Wake up, utho. Okay, so in this lesson we have a poem. We have a poem that we have to recite, and in this poem, guys, if we will go further, we would see that in this whole poem, you know the child, the child is actually talking about the morning scenario. सवेरे उठने पर क्या क्या चीजें हम देखते हैं, हम करते हैं, and what are the things that changes in the morning, and what are the things, that activities that goes on in the morning. So on all these things, in this poem, the child who is in the central character, yes, is narrating things through the poem. ठीक है, तो ये जो बच्चा है वो इस पोएम में सवेरे जो होने वाली, मॉर्निंग में जो होने वाली बहुत सारे इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है. ओके गाइस, so first of all we are going to recite this poem. Yes, so I will recite it. Yes, so it's a offline, no, it is not a live class where you would get opportunity to recite it. So first guys, you have to just listen to me. आपको बस मुझे सुनना होगा, and after the class you have to, imitate me, copy me and read it on your own. Okay, so I'm just doing an ideal reading, ideal recitation for you all. Okay, so मैं बस एक आदर्श रूप में यह लेसन को रिसाइट कर रहा हूँ, पोएम को रिसाइट कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ. Okay, so okay. Wake up, wake up, wake up, wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Yes, so this way we recited it. Next stanza is this: wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wake up, it's a lovely day. Yes, oh, please get up and come and play. Now, wash and dress and come on out. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. So guys, when we recite poem, there must be a rhythm, there must be an intonation changes. Yes, so this way we recite poem. तो poem पढ़ने के लिए, कविता पढ़ने के लिए हमें थोड़ा लय में गाना पड़ता है ना, लय में हमें सिंग करना पड़ता है, रिदम में सिंग करना पड़ता है, इंटोनेशंस के साथ खेलना पड़ता है. So this way we have to do. ठीक है, सो हम इसके लिए, अगर हम इस पोएम को गाना चाहते हैं गाइस, तो सबसे पहले हमें रीड करना होगा हर एक वर्ड्स को. ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर हैं, ऑल द वर्ड्स यू मस्ट बी एबल टू रीड. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, ये सारे वर्ड्स आप पिछली कक्षाओं में कई बार पढ़ चुके हैं. तो गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास 4 के हिसाब से आप सब लोगों को बहुत अच्छे से रीडिंग आनी चाहिए. तो एक बार हम सिंपली इसको रीड करेंगे और आप लोग फिर इसको फॉलो करेंगे. ओके, सो वेक अप, इट्स अ लवली डे. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. So guys, साथ ही साथ हम इसका मीनिंग भी समझते चलते हैं. वैसे तो पता नहीं आप लोग समझ पा रहे होंगे शायद, बहुत सारी चीजें तो इसमें बहुत सिंपल है. So this child is saying that wake up, it's a lovely day. ठीक है, उठ जाओ, ये बहुत ही सुंदर दिन है. Oh, please get up and come and play. और हाँ, प्लीज उठो, खड़े हो जाओ और come and play, आओ और खेलो. देखो क्या हो रहा है. The birds are singing in the trees. Birds जो है पेड़ों पर गाना गा रहे हैं.
and you can hear the buzzing bees, और you can hear, तुम सुन सकते हो कि मधुमक्खियां बज कर रही हैं, जो उनकी हमिंग की साउंड होती है उसको बज कर रहे हैं। So मधुमक्खियां बज कर रही हैं। So this happens in morning. In the morning, birds get active, and also many insects and creatures also get active. Yes, so they do the process of their survival. They go for their daily routines. Yes, so ये चीजें होती हैं मॉर्निंग में। और क्या क्या चीजें होती हैं? So wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play। अब इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया है ना। आगे देखते हैं। It's much too late to lie in bed। तो ये बहुत देर हो गया है, इतनी देर तक आपको सोना नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा देर तक बेड में सोने का समय निकल गया है, या बेड में सोने का समय, लाई इन बेड, बेड में पड़े रहने का समय जो है निकल गया है, उससे ज्यादा समय हो गया है। सो हरी अप, जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, जो सोने वाले है ना, जल्दी करो और ज्यादा समय तक बिस्तर में मत सो। सो गाइस, इन द मॉर्निंग वी मस्ट नॉट sleep or wake up late in the morning. Yes, we should sleep early in the morning and wake up early, wake up, sleep early in the morning and wake up early in the morning। तो सब रात में भी जल्दी सोना चाहिए और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। So this stanza is saying, ये जो stanza है वो हमको वही बता रही है। Okay, now आगे क्या हो रहा है? Wash and dress and come on out, मतलब नहा लो, वॉश कर लो, मुंह धो लो, नहा लो, एंड ड्रेस, कपड़े पहन लो, एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। Everyone is up and about, यहाँ पर बाहर हर कोई उठ गया है और अपने अपने काम कर रहा है। See here in this poem, these ducks, squirrels, this bird, this lamb, sun, birds, horses, bees, you can see the beehives। So every creature here in this picture have woke up। Yes, so सब उठ गए हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भैया तुम भी जल्दी से वॉश कर लो, ड्रेस कर लो और कम आउट, बाहर आ जाओ। Everyone is up and about, हर कोई अपना काम कर रहा है, घूम रहा है। The cows, the horses, the ducks and the sheep, देखिए ये सारे जानवर जो है यहाँ पर वो उठ गए हैं। The tiniest chicken, चीप चीप चीप, और छोटा सा जो मुर्गी का बच्चा है, चूजा है, सी वो भी यहाँ पर चीप 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 करके उठ गया है। सो वेकअप, तो ज्यादा सोए मत रहो, डोंट वेक अप फॉर लॉन्ग। यस, सो दिस इज अबाउट द पोएम गाइस। सो दिस पोएम टेल्स अस अबाउट दिस। सो गाइस, अब आपको करना क्या है? आपको करना है इसकी रीडिंग प्रैक्टिस। यस, आपको क्या करना है? इसकी अब रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैंने जैसा रिसाइट किया वैसे ही इसको गाने की कोशिश करना है गाइस। सो यहाँ पर आप लोग को काम मिलेगा कि आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस की ऑडियो मुझे सेंड करें, और साथ ही साथ जब रीडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ये रिसाइटेशन की भी मुझे ऑडियो सेंड करें कि आप इसको गाने के जैसे जैसे मैंने गाया है उसी तरीके से ट्यून में गाकर मुझे आप ये सेंड करेंगे। ओके, सो आपको ये रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, तीनों स्टैंजास, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार और मैं गा के सुनाता हूँ। यस, एक बार और रिसाइट कर देता हूँ। वन मोर टाइम आई रिसाइट इट फॉर यू ऑल। So wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play। The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees। Wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play। It's much too late to lie in bed, so hurry up you sleepy head। Wash and dress and come on out, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, and tiniest chicken, cheep, 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 wake up। So this way we have to do। So guys, यहाँ पर कुछ words हैं जो हमें पढ़ने आने चाहिए। Yes, so देख लीजिए। What is this? 1 minute guys। Yeah, so what is this? This is lovely, then buzzing, then sleepy head, then tiniest। So guys, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। Okay, yes, so चलिए ठीक है। So we have seen, we have read the poem, we have recited the poem, we have read the difficult words, the words that are difficult for us to read। So all the things we have done, now we will move to the activity portion। Okay, so now in this lesson we have these activities here। So reading is fun, here we have 3 questions।
So we have to read these questions. हमें ये questions पढ़ने हैं, हमें ये questions पढ़ने हैं और पढ़कर समझने हैं meaning, and we have to write answer for this. ठीक है, और हमें इसके लिए क्या करना है, आंसर लिखना है. Yes. Now second activity हमें क्या करनी है, let's listen. मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, listen to the song of the bird and say the word. Yes. So guys, here we have some words written. यहाँ पर words written किया गया है और ये सब b साउंड से शुरू हो रहे हैं. So हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो लेटर्स हैं उनके साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे आज. ठीक है, तो हम साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे, साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा लेटर कौन सा साउंड देता है, which letter gives what sound. Yes. Okay. Now let's listen and talk. तो ये तो भाई इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, तो इस पे आप अपने घर में हम बहुत सारी चर्चा इस एक्सपीरियंस से शेयर को करेंगे. ठीक है, ओके. और फिर हम यहाँ पर ये जो चीज है इसको हम पढ़ेंगे. ये भी एक तरीके की पोएम है जिसको हम शायद पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ राइटिंग की हमारे लिए एक्टिविटी है जहां पर हम करते हैं. ठीक है, सो हम सीधे चलते हैं यहाँ पर. सो गाइस, रीडिंग इज फन. सो हियर हम करने वाले हैं रीडिंग इज फन. So guys, हम इसे पढ़ेंगे. We will read these questions and we will write the answers. So answers I have written. Yes, so आप इसे एक बार देखेंगे और फिर आप इसे खुद से लिखने की कोशिश करेंगे. So this is just a kind of demonstration for you all guys. And after watching this, you'll have to do it on your own. Okay, so let's read the first question, guys. So आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं. Yes. So the first question is, what do you think birds say to each other in the morning? So what do you think birds say to each other in the morning? मतलब what do you think, आप क्या सोचते हैं birds say, चिड़िया कहती है to each other, एक दूसरे से, in the morning, सुबह. तो आपको क्या लगता है कि चिड़िया जब एक दूसरे से सुबह मिलती होगी तो वो एक दूसरे को क्या बोलती होगी? So guys, what we say to each other? So guys, if we want to give this answer, we have to look at our life or our morning situations where we meet up with our friends, and how do we what we say to them. हम क्या करते हैं अपने दोस्तों को when we meet our friends in the morning? So guys, क्या बोलते हैं? जैसे मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं ना. We say good morning to each other. So in the same way, maybe birds also say good morning to each other, but their language is different. तो हो सकता है कि वो भी good morning ही बोलते हैं, पर उनका language अलग है. Yes. So what will be the answer? I think. What do you think birds say to each other in the morning? तो birds, आपको क्या लगता है कि birds सुबह एक दूसरे को क्या बोलते होंगे? So answer is this. I think birds say good morning to each other. So क्या होता है? गुड मॉर्निंग टू वन अनदर और ईच अदर. तो मुझे लगता है भाई कि बर्ड्स जो है एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं सवेरे. यस. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक? हु आर, वन मिनट, हु आर ऑलरेडी अवेक मतलब हु, कौन, ऑलरेडी पहले से, अवेक उठे. तो इस पोएम में, इन दिस पोएम, who are already awake, कौन कौन पहले से ही उठ चुके हैं? who are already awake in this poem? So guys, आप सबको पता है कि in this poem these creatures, the ducks, the squirrels, the birds, the horses, the lamb, the bees, or the butterflies, all these things have woke up already. Yes. So this is the answer. The cows, the horses, the ducks, the sheep and the tiniest chicken are already awake. So guys, इस who को हटा के आप ये सारी चीजें लिख देंगे. So आपका आंसर बन गया. You have got your answers. Yes. So who are already awake? The cows, the horses, the ducks, the sheep and the tiniest chicken are already awake. Yes. Now let's see the third question, guys. Which creatures wake up in the morning before the child does? Which creatures wake up in the morning before the child does? Guys, अब आप ध्यान से सोचिए इस बात को कि बच्चे के उठने के पहले या बच्चों के उठने के पहले, imagine yourself also in that place. Yes. So आपके उठने से पहले और कौन कौन से जो creatures हैं, मतलब जीव हैं,
जानवर हैं जो उठ जाते हैं. So guys, if you imagine it, if you observe it, if you look at the surrounding, there are so many creatures. बहुत सारे creatures हैं जो आपके पहले उड़ जाते हैं. Some of them have been mentioned here, और कुछ के नाम तो यहाँ पर दिए गए हैं, but इनसे भी ज्यादा जो creatures हैं वो उड़ चुके होते हैं. So which creatures wake up? कौन से जानवर उठ जाते हैं सुबह in the morning before the child does? बच्चों के उठने से पहले. So guys, इसका आंसर क्या कर सकते हैं? Many creatures, बहुत सारे creatures. Many creatures like birds. बहुत सारे creatures जानवर उठ जाते हैं जैसे कि birds, animals मतलब जानवर, and insects wake up before the child does. So birds, animals and insects wake up before the child does. So many creatures like birds, animals and insects wake up before the child. ठीक है, तो इनके उठने से पहले, बच्चों को उठने से पहले ये सारे क्रीचर जो है उठ जाते हैं. ठीक है गाइस? ओके, सो गाइस अब आपको करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी. यस, एंड यू हैव टू राइट दीज आंसर्स. और एक बार आप यहां से देख लीजिए और इसको आप खुद से फिर मन से लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, और ये बहुत जरूरी है बिकॉज दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. सो आप इसे थोड़ा सा देख लें. ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं लेट्स लिसन की ओर. अगली एक्टिविटी जो है वो हमारी लेट्स लिसन की है. गाइस सी लिसन टू द साउंड्स ऑफ द लेटर. गाइस आप लोगों से मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं. नाउ आई वांट टू डिस्कस ऑन a special point here. Guys, what are these? If I write it to Z, then what are these? A, B, C, D, E, F, G, H, blah 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 and Z. So A to Z ये क्या है? हमारे letters हैं. Yes, क्या है? हमारे अल्फाबेट है. क्या है? हमारे अल्फाबेट है. और आप जो ये A, B, C, D, E ये जो पढ़ते हैं, the way you read it, A, B, C, D, E, Z, these are their names. तो ये इनके क्या है भाई? नेम्स हैं, और ये इनके साउंड्स नहीं है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन नेम्स के बदले इनके साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे. सपोज व्हाट इज दिस लेटर गाइस? दिस इज A, but this A is the name of this letter, but इसका साउंड क्या होता है? A. A produces A sound. So A and A apple, A axe, A arrow, A Almira, A aeroplane, A astronaut. So this is A. The name of this letter, इस letter का नाम क्या है? A. But the sound of this letter A is A. तो guys आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. A. तो A and A apple, A axe, A arrow, A Almira, A aeroplane, A astronaut. Yes. In the same way, guys, now we have the next letter. This is B. This is B. But the sound of this letter B is B. B. So B bat, B ball, B balloon, B box, B bear. This is not beer, guys. This is bear. B bench, B bag, B boy, B boy, B boy. See now this letter is C. But the sound of this C is K. K. Now we call it C, but the sound of this letter is K. इसको हम C बोलते हैं, but इसका sound क्या है? K. So K cat, K cap, K cup, K couch, couch sofa, K carom, K card, K cow. So this C is the name of this letter, but the sound of C is not S, but K. K cat, K cat, K cap, K cup, K couch, K carom, K card, K cow. Okay, now let's see D. So this is D. The name of this letter is D,
but the sound of D is D, D. So D, drum, D, duck, D, doll, D, dolphin, D, dog, D, deer, D, doctor. So D, drum, D, duck, D, doll, dolphin, dog, deer, and doctor. So we saw here 4 letters, guys. यहाँ पर हमने 4 letters लिखे, A, B, C, D. These are the names of these letters, but sound is A, B, K, and D. So this way, guys, if we go from A to Z, every letter has their sounds. तो ऐसे ही हर लेटर का साउंड होता है, नाम उसका साउंड नहीं है, नेम इज नॉट देयर साउंड, बट दे हैव देयर साउंड्स डिफरेंट. यस, सो उन साउंड से हम रीडिंग शुरू करते हैं, गाइस. तो ये आप लोग देख लीजिए. सो ए एंड, बॉल, कैट, ड्रम. दिस वे वी utter the sound of the letters. ठीक है. So अब आप लोगों के लिए, now you have a work to do. Now you have to make 5 words starting with the sound of the given letter. So the same letters have been given, A, B, C, and D. These 4 letters are given here. These 4 letters are given here. ये 4 letters यहाँ पर आपको दिए गए हैं. Now you have to make 5 words starting with this letter, and you have to read it with the sound. ठीक है. तो इसके साउंड से, इस साउंड से शुरू होने वाले आप वर्ड्स खोजें, और 5 वर्ड्स, 5 words you have to write here, but these words should not be repeated here. और ये जो मैंने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, ये नहीं आने चाहिए. You have to find different words. So different words आपको खोजने हैं, guys. Okay. So this you have to do, and you have to share it on the WhatsApp group of the school. Okay. Yes, guys. ठीक है. Okay. So अब हम क्या करते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं, और ये तो सिर्फ एक डिस्कशन है. So let's listen and talk. So let's listen and talk. So what you have to do, guys? So what you have to do? So when you go for walk, जब आप walk पर जाते हैं, what are the sounds you hear, guys? कौन से sounds आप सुनते हैं, guys? You go for walk. Yes. We play outside the house, we go to park, we go to jungle, we go to marketplaces. Yes. So wherever we go for walk, what are the sounds we hear? And if I talk especially about the morning, अगर मैं सवेरे की ही बात करूं, especially सवेरे अगर आप घूमने जाते हैं, so what are the sounds? What are the sounds you hear? तो क्या-क्या चीजों की आवाजें आपको आती हैं? Guys, please tell your parents. And if you want to tell me, you can also record it on your mobile and send the recording. Yes. Okay. But if you don't want to record it, you can share your parents that when you go for walk, जब आप walk पर जाते हैं, what are the sounds you hear? कौन सी ध्वनियां, sounds you hear, आप सुनते हैं, hear करते हैं. Yes. So this you have to share with your parents. Now, guys. Now next. Okay. Now second point. Imagine that a cow, a horse, a duck, and a chicken are meeting for morning meal. ठीक है. मतलब क्या हो रहा है कि इमेजिन मतलब कल्पना करो. इमेजिन दैट, क्या हम इमेजिन करना है कि एक काऊ, एक हॉर्स, एक डक और एक चिकन. चिकन मतलब मुर्गी को भी चिकन बोलते हैं. सो अ चिकन आर मीटिंग फॉर मॉर्निंग मील. मीन्स भोजन, सवेरे. तो सवेरे के खाने के दौरान, सवेरे जब वो भोजन कर रहे हैं, उसके दौरान अ काऊ, अ हॉर्स, डक एंड चिकन मिलते हैं. व्हाट वुड दे से टू वन अनदर? टॉक अबाउट इट. तो ये सब एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या कहेंगे, गाइस? अगर हम बात करें इसकी, सो हम बोलेंगे ना कि दे में से गुड मॉर्निंग. वो क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग. यस. सो गुड मॉर्निंग तो हमारा लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, बट वो लोग अपनी भाषा में क्या क्या बोलेंगे? सो अ काऊ विल से मूव. काऊ क्या बोलेगी? मूव. ऐसे बोलती है ना, रंभाती है ना, शी मूव. और हार्स क्या बोलेगा? ने. वो हिनहिनाता है ना घोड़ा, तो क्या करता है? ने करता है. और डक क्या करता है? क्वैक क्वैक. और चिकन चिक चिक. यस. सो इस तरीके से चीजें क्या करेगा वो?
एक दूसरे से बात करेंगे और यही उनकी भाषाएं हैं। सो उनकी भाषा में मे भी शायद वो गुड मॉर्निंग ही बोले, बट द वे ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग विल बी इन देयर लैंग्वेज, तो उनकी भाषा में होगी। सो काउ सेज मू, हॉर्स सेज ने, duck says quack quack, and chicken says chick chick. So these things they say when they meet for morning meal. तो morning meal के समय जब वो मिलते हैं, तो शायद यही चीजें वो अपने अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, और शायद वो अपनी लैंग्वेजेस में गुड मॉर्निंग ही कह रहे हो एक दूसरे को। यस, सो गाइस आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही फनी सा रीडिंग वाला एक टास्क देता हूं, आप इसको करिएगा, ठीक है। अब इसको मैं पहले एक एक करके पढ़ूंगा, ठीक है, एक एक करके पढ़ूंगा पहले, उसके बाद देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम, ओके। और जैसा मैं करूंगा वैसे ही करना है। सो दिस इज बेटी, बेटी मेरे साथ पढ़ते जाइए। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर। नाउ सेकंड लाइन, but the bit of butter that Betty bought was bitter. Yes, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. सो गाइस यहाँ पर देखिए सब में ब ब ब ब ब साउंड ज्यादा आ रहा है। यस, और ये एक तरीके से हमें रीडिंग के लिए और बोलने के लिए ना अच्छा सा हेल्प प्रोवाइड करेगा। यस, तो हमको इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी है। सी, अगर मैं इसको इस तरीके से देखो तो मुझे बस सुनते जाइएगा, और दिस तरीके से आप, दिस वे यू आल्सो कैन प्रैक्टिस। यस, so Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. समझ में आया आप लोग को? सो दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस, जितनी तेजी से हम पढ़ सकते हैं सारी चीजों को। सो ब साउंड ज्यादा आ रहा है, बट यहाँ पर ये हमको प्रैक्टिस दे रहा है। ओके, सो Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Yes, so this way you have to try. पढ़ के देखिए आप लोग, ये ठीक वैसे ही है जैसे बोलते हैं ना कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। So this way, this is the practice in English. So इससे क्या होता है, हमारे जो टंग है ना वो फ्री होता है इंग्लिश को पढ़ने के लिए और बोलने के लिए। गाइस तो ये करके आप मुझे करके भेजिए तो, ठीक है। सो गाइस अब बाकी की जो बची एक्टिविटीज हैं, यस, वो एक्टिविटीज हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। सो आज की क्लास को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो गाइस ये आपको करना है, यू हैव टू रीड दिस एंड रिसाइट दिस एंड रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू मी। देन we did the first 3 activities up to here, यहाँ तक की एक्टिविटी हमने की, and this activity we will do in next class. So what are these activities? So reading is fun, so I wrote these questions here. I wrote one minute, I wrote these questions here. So what do you think birds say to each other in the morning? So I think birds say good morning to each other. So now you have got the meaning of the questions and you know how to read the questions, and you have the meaning, and then you have to write the answer. So guys, you have to send the answer in WhatsApp group, and all the things you have to write in your English copy. तो अपनी English copy में लिखना है, okay guys? फिर हम गए listen to the words, तो हमने यहाँ पर 4 लेटर्स एक तरीके से एग्जाम्पल में लिए, और इन 4 लेटर्स जो है उनके नाम के बदले उनके साउंड्स को समझा। सो दिस ए सेज अ, बी ब, सी क, डी ड। सो दीज आर द साउंड्स। तो हमने इससे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर देखे और आप लोगों के लिए काम छोड़ा। आई लेफ्ट सम वर्क फॉर यू दैट यू हैव टू फाइंड 5 वर्ड्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दीज लेटर्स और साउंड्स। यस, और मैं इसके साथ एक वीडियो भी डालूंगा गाइस, प्लीज पूरा देखिएगा, वीडियो भी डालूंगा जिसमें हम सभी लेटर्स के साउंड पर बात कर रहे हैं कि लेटर्स के नाम को छोड़कर उनके साउंड्स क्या क्या निकलते हैं, उनके साउंड्स क्या होते हैं, उसका मैं एक वीडियो डालूंगा जो कि आप लोग प्लीज देखिएगा, क्योंकि रीडिंग में वही चीजें हमें हेल्प करती हैं, बिकॉज़ दैट थिंग ओनली हेल्प्स अस इन रीडिंग। यस, एंड देन वी टॉक अबाउट दिस टॉक एक्टिविटी, सो यू कैन शेयर these parts with your parents, that when you go for walk, what are the sounds you hear, क्या क्या चीजें आप सुनते हैं जब आप वॉक पर जाते हैं। और imagine a cow, horse, duck and chicken are meeting for a morning meal, what would they say to one another? Talk about it. So you also can share it with your parents or with your friends group. Yes, so cow says moo, neigh, quack, chick chick, and also you can talk that if other animals are also there, अगर इनको छोड़कर और भी कुछ animals हैं तो what would they say, वो भी क्या करेंगे।
यस, और क्या कहेंगे। और गाइस सबसे आखिर में इन द वेरी लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग दिस। और जैसा मैंने कहा ना उस तरीके से, जैसे बहुत मजेदार था ना, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वाज बिटर, सो बेटी बॉट सम बिटर बटर, सो टू मेक द बिटर बटर better. So this way you have to practice. Okay, guys, I'm stopping the video now. In the next video of this, which will be the part 2 for this video, जिसके लिए part 2 होगा, उसमें हम आगे की जो राइटिंग एक्टिविटी है that we will be doing, तो उसको हम करेंगे और फिर उस वीडियो में हम आपसे और मिलेंगे। ठीक है, सो 2 वीडियो में इस लेसन को, इस यूनिट को खत्म करेंगे, बट इससे हमें क्या क्या सीखना है उसकी बात हम आखिरी क्लास में करेंगे। ओके, सो बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। hope you like this video. Yes, और प्लीज जब आप देखें तो इसे एक साथ ना देखकर आधा आधा देखें, जैसा आपको सहूलियत। ओके, बाय बाय।